السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک و ریاست بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کروڑوں مسلمان اپنے رب کے آگے سر بسجود، دنیا بھر میں امن کے لیے کی گئی دعائیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے عیدگاہ میرعالم میں نماز عید ادا کی، مسلمانوں کو دی عید الفطر کی مبارکباد۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے متعلقہ حلقوں میں واقع عیدگاہوں میں نماز عید ادا کی، مقامی عوام سے کی ملاقات۔ پارٹی سے ناراض تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر کو منانے کی کوششیں تیز، جیون ریڈی اپنے فیصلے پر قائم۔ تلنگانہ کے کریم نگر ون ٹاؤن سب انسپکٹر نے کر لی خودکشی، 3 دن قبل بیوی نے کی تھی خودکشی، پولیس مختلف زاویوں سے مصروف تحقیقات۔ ملاوٹی اشیاء کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری، ضیا گڑھے میں ناقص اور غیر معیاری ماحول میں سموسے تیار کرنے والے کارخانے پر دھاوا کیا گیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک بھر میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، مساجد اور عیدگاہوں میں کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ دہلی، مہاراشٹر، اتر پردیش، تمل ناڈو، راجستھان، گجرات، آندھرا پردیش، تلنگانہ، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، کرناٹک اور دوسری ریاستوں میں نماز عید کے موقع پر مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھے گئے۔ فضائیں اللہ کی حمد و ثنا سے معطر نظر آئیں۔ حساس علاقوں میں پولیس کے وسیع تر انتظامات بھی دیکھے گئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی، مرکزی وزراء اور مختلف جماعتوں کے لیڈرز نے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دونوں شہروں میں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بھی عید الفطر نہایتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع میرعالم عیدگاہ میں دیکھنے میں آیا، جہاں سینکڑوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ عیدگاہ میرعالم میں صبح 10 بجے نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ حافظ و قاری محمد رضوان قریشی خطیب مکہ مسجد نے امامت کی اور خطبہ دیا۔ نماز سے قبل مولانا سیف اللہ اور مولانا حسام الدین ثانی، علامہ جعفر پاشا نے فضائل عید الفطر پر خطاب فرمایا۔ نماز کے بعد مسلمان ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر مبارکباد دیتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ الله أكبر الله
पहले सबका फितर देते। मौलाना किसको देना समझ में नहीं आ रहा। 100 सोनार की 1 लोहार। दीनी मदरसे जामे निजाम में कुछ दे दो, कॉल करो आके ले ले यार, क्या देते थे तो? एक आने से पहले देना था, नहीं है जाते हुए दे दे के जाना सबका फितर आपके लिए। ज़कात, ज़कात कैसा देना मौलवी साहब? मैं जाके सोने का रेट पूछा तो बेचते वक्त कम ले रहे, खरीदी का रेट क्यों? वो कैसा देना? मना कुछ भी नहीं, उसूल ये है सोने में से सोना, चांदी में से चांदी, पैसे में से पैसा, खेती बाड़ी अनाज में से अनाज, फलों का बाग आता है फलों में से फल। क्या बनता? सोने में से सोना देना। हाँ अल्लाह देने देती क्या? देखो दियो पूछो, सोना और लोहे में सोना बदली होता है। उन्हें 1 किलो लोहा नहीं पहनेंगी लेकिन 10 किलो सोना पहनेंगी, एक बारी भी नहीं देती। तो फायदा ये है कि आप सोने में से सोना भी उतना कैलकुलेट करें, गरीब को दो। अगर नमाज की पाबंदी करे तो मेरे साथ आप रह सकते हैं, अगर नमाज की पाबंदी नहीं करे तो बेटे मैं अल्लाह के नाफरमान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकता। है हिम्मत बोलने की? आज हमारी औलादें सुनने तैयार है। आज हमारी औलादों का क्या हाल हो गया है। हमारी औलादें अपने बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ रही, अपने बुजुर्गों से भी बदतमीजी कर रही, अपने बुजुर्गों को भी तकलीफ पहुंचा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप और हम ये तय करके उठे कि आज तक हमने रमजान के अहकाम के मुताबिक, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हमने जिंदगी गुजारी है, और अब आइंदा जिंदगी हमारी जो होगी वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इधर क्या देखो, इधर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज ईद उल फितर ईदगाह मीरालम में अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात भी की। बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। मैं अपनी जानिब से, हैदराबाद की आवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने जो रमज़ान में जो पूरे रोज़े अदा करने की तौफ़ीक़ दी, अल्लाह उसको कबूल करे। हमारी ज़कात को, सदक़ात को, हमारी शब बेदारी को और क़यामुल लैल जो हमने किया, अल्लाह उसको कबूल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले 11 महीने में भी हम जिस तरह रमज़ान में नेकियों को अपनाएं, और उसी तरह आने वाले 11 महीने में हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं आप तमाम को ईद की भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल और साबिक़ अराकीन बल्दिया ने ईद उल फितर के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और अपनी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली, जाफ़र हुसैन मेराज, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद माजिद हुसैन और कौसर मुहिउद्दीन ने मुतालिका हल्क़ों में वाक़े ईदगाहों में नमाज ईद अदा की और मुक़ामी मुसलमानों से मुलाकात करते हुए उन्हें ईद की मुबारकबाद भी पेश की। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के साथ इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी नमाज ईद के मौके पर देखे गए। इसी तर्ज पर मजलिसी अराकीन कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी और साबिक़ कॉरपोरेटर्स ने भी मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हैदराबाद की आवाम को मेरी जानिब से और इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें रमजान के पूरे रोजे नसीब फरमाया और आज ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में पढ़ने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र और एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं
हमारे आज के मुखर्रिज अली अज़हरुद्दीन साहब का मशहूर हूँ कि वो आज हमारे दरमियान में आए और मुखातिब फरमाया। मैं हमारे मलिकपेट के एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला राणा साहब का मशहूर हूँ कि वो अपनी निगरानी में सारी ईदगाह की इंतजाम कराए। उसके साथ साथ उनके बाद कारपोरेटर मिन्हा साहब और फैयाज असद और सईदाबाद और असरबाद के तमाम नौजवान जो अपनी खिदमत अंजाम दिए तमाम को मशहूर हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मलिकपेट के अंदर इंशाअल्लाह ये ऐलान गौर से सुन लीजिए कि SIR के लिए अहमद बिन अब्दुल्ला राणा साहब तमाम इलाकों में इंतजाम किया है। आपने पहली फुर्सत में उससे रुचि हुई है और अपने सर्टिफिकेट और अपने तमाम चीजों को दुरुस्त करवा लीजिए। इंशाअल्लाह तमाम मुकामात में इसका इंतजाम किया गया है। SIR की जानिब से बाहर जो है शरबत का इंतजाम किया गया है। जल्दी से देखते हैं आप लोग चाहते हैं शरबत पेश करवाते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर जो है अपनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी होता फरमाए। एक आप लोग चाहते हैं जो रास्ते से दूसरे रास्ते से जाइए और तकबीरात कहते हुए जाइए। आप तमाम हज़रात को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक। एक चीज गौर से जरूर सुन लीजिए मोहतरम हज़रात, मैंने मस्जिद में भी ऐलान किया, मुख्तलिफ जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से वसीले से बोला अल्लाह करीम ने हमें इतनी भी नेक अफ़कार किए हैं, इतनी भी इधर ऊपर आ जाओ, नंबर पे नहीं कर सकते। मैंने आप 2 मिनट में बंद दे दीजिए आप सब रंग बात करके सलाम के बाद सलाम शुरू करो तो
दोनों शहरों की ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद उल फितर के सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। ईदगाह मीरालम में सुबह 10 बजे नमाज ईद उल फितर अदा की गई और पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने पुलिस इंतजामात की रास्ते निगरानी की, जबकि इस मौके पर DCP किरण खारे के अलावा दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बादौना कमिश्नर पुलिस और DCP ने मीडिया से बात करते हुए आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी। तमाम बिरादरान नकीब मिल्लत आले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुलीन मंजिल से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। आप तमाम से गुजारिश है कि जनाब मोहम्मद सादिक साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ था। उनके साहिबजादे ने दरख्वास्त की है उनकी मग़फ़िरत के लिए, दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करे, दुआए मग़फ़िरत करे। और सरजमीन दक्कन के हिंदुस्तान के मायानाज खतावर कायद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने आज की न्यूज़ 4 TV 1 सदी से ज्यादा अरसा कौम व मिल्लत में इदारे कायम करके कौम व मिल्लत का एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। सालार मिल्लत के दर्जात की बुलंदी के लिए भी हमेशा दुआएं करते रहे। हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब किबला अमीर जामिया निज़ामिया की जानिब से तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। हैदराबाद सिटी पब्लिक को, मुस्लिम ब्रदर्स को ईद मुबारक। आज रमज़ान है, इस मौके पे सबको ये फेस्टिवल अच्छा होने के लिए, सब लोग खुशी रहने के लिए मैं सबको विश करता हूँ। आज हैदराबाद सिटी में सारा प्लेसेस में प्रेयर्स पीसफुल हो गए। मैं यहाँ पे हमारा ऑफिसर्स के साथ मीरा आलम टैंक की ईदगाह पे मैं यहाँ पे प्रेयर्स में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे सब पीसफुल होके अभी पब्लिक भी निकल रहे हैं। इस महीने रमज़ान के महीने में सब लोग अच्छा कोऑपरेट किया, ऑल एल्डर्स कोऑपरेट किया। कल आज सुबह तक भी शॉपिंग का चला, एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ। सो मैं सब पब्लिक को, हैदराबाद वासी को, सब लोगों को मैं मेरे तरफ से मुबारक। आगे आने वाला फेस्टिवल में भी ऐसी सब लोग कोऑपरेट करके हैदराबाद के लिए अच्छा नाम लेके आने के लिए हम लोग सब मिलके लेके आएंगे। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने कहा है कि किसानों को अक़ल तरीन कीमतें ना मिलने से उन्हें नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत ने ख़रीदारी मराकज़ कायम नहीं किए। किसान बाहर 1700 रुपये फ़ी कुंटल अपनी फसल फ़रोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत के मराकज़ पर उन्हें 2400 रुपये फ़ी कुंटल की अक़ल तरीन कीमत मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सूरजमुखी की फसल को लेकर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हरीश राव ने बताया कि BRS के दौरे हुकूमत में सिद्दीपेट के लिए जिन 1070 करोड़ रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया था, कांग्रेस हुकूमत ने उसे मनसूख कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत सिद्दीपेट को तरक्की देना नहीं चाहती। 2021లోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవో ఇచ్చింది। 300 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ ఫ్యాక్టరీని నాటి BRS ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది, పనులు ప్రారంభించింది। సో ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ ఈ ప్రాంతంలో రావడంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు చాలా చాలా కీలకం। కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు లేకపోతే అసలు మనం ఈ ఆయిల్ పామ్ సాగు అనేది సిద్దిపేట ప్రాంతంలో మనం ఊహించలేం। కాళేశ్వరాన్ని కూలేశ్వరం అన్న రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన చేతుల మీదుగా ఈ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభం అవడం అనేది శోచనీయం। అట్లీస్ట్ ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరువు రేవంత్ రెడ్డి। కాళేశ్వరం కూలేశ్వరం కాదు, కాళేశ్వరం తెలంగాణకు వరం। నువ్వు నర్మెటలో ఏ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభిస్తున్నావో ఆ ఆయిల్ పామ్ ఫ్యాక్టరీకి కూడా 20 కోట్ల లీటర్ల
కాళేశ్వరం జలాలే ప్రతి సంవత్సరం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నర్మెట పక్కనే కెనాల్ పోతా ఉంది. అక్కడ దాకా పోయి నెత్తి మీద నీళ్లు జల్లుకొని నీ పాప పరిహారం చేసుకో. ఆ రోజుల్లో మేము కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేటప్పుడు మల్లన్న సాగర్ ను అడ్డుకోవడానికి 2 రోజులు నువ్వు అడ్డం పండుకున్నవాడా. నువ్వు అడ్డం పండుకున్నా, హైకోర్టులో కేసులు వేసినా, ప్రాజెక్టును నువ్వు ఎన్ని రకాలుగా అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినా మొక్కవోని దీక్షతో ఆ రోజు మేము ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసినాం. तेलंगाना बजट में साल 2026-27 में एक अहम अवामी फलाही फैसला करते हुए रियासती हुकूमत ने तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम मुतारफ़ करवाने का ऐलान किया है, जो तालीमी साल 2026-27 से नाफिजुल अमल होगी। इसके साथ ही हायर सेकेंडरी तलबा के लिए मिड डे मील स्कीम को भी तोसी दी जाएगी। ये ऐलान रियासती असम्बली में नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना ने जुमे को बजट पेश करते हुए किया था। उन्होंने बताया कि अब सरकारी जूनियर कॉलेजों में ज़र तालीम हायर सेकेंडरी तलबा को भी मिड डे मील फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक तमाम तलबा के लिए रियासत भर में नाश्ते की स्कीम शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें मियारी ग़िज़ाइयत फराहम की जा सके। इस स्कीम के तहत तलबा को हफ्ते में 3 दिन दूध और बाकी 3 दिन रागी माल्ट फराहम किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से तलबा की सेहत बेहतर होगी, हाज़िरी में इजाफा होगा और स्कूल छोड़ने की शरह में कमी आएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी के पार्टी छोड़ने की ख़यास आराइयों के तनाजुर में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने हफ्ते को जीवन रेड्डी से उनके ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस बात की ख़यास आराइयाँ की जा रही थी कि जीवन रेड्डी 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि जीवन रेड्डी ने नाराज़गी की जो वजह बताई है उसे पार्टी क़यादत और वज़ीर आला से रुजू किया जाएगा। ताहम जीवन रेड्डी ने ये कहा है कि वो अपने फ़ैसले पर कायम हैं। अब देखना है कि 25 तारीख को क्या जीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं। एलबी नगर में गैर कानूनी हुक्का सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक ACP कृष्णैया की क़यादत में शहरी कैफ़े पर धावा करते हुए 20 अफराद को तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि बिना लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर कैफ़े की आड़ में हुक्का सेंटर चलाया जा रहा था। हुक्का सेंटर पर मौजूद चंदा नगर, BN रेड्डी नगर और वनस्लीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद को तहवील में लिया गया। 15 गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स और भारी मकदार में हुक्का फ्लेवर्स, पॉट्स और दूसरे सामान को भी जब्त किया गया। ये कोल है, ये फ्लेवर है, इसके ऊपर फाइल मार, ओके, हाँ, कोल लगाने के बाद क्या करते हैं? खींचता, कैसा ये लगा के? क्या था वो लगाने तो स्मोक हो, कैसे बोला?
మొన్ననే రైడ్ చేసేది కదా, తెలుసా? రైడ్ చేసింది వచ్చింది కదా అంతా, తెచ్చినాక తెలిసినాక కూడా వచ్చింది అంటే పోలీసు వాళ్ళు అంతా ఏం చేయలేరన్నా. ఏంటంత ధైర్యం లేదు అసలు, నడిపించడం ధైర్యం లేదు, మీ ధైర్యం లేదు. డీటెయిల్స్ రాసుకోండి, వీళ్ళ వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయండి. पैसा आता ओके हैदराबाद में मिलावटी अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने जियागुड़े में नाखिस और गैर मियारी माहौल में समोसे तैयार करने वाले कारखाने पर धावा किया है। पुलिस ने 73 साला अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया, जबकि तकरीबन 5 लाख रुपये की मिलावटी अशिया को भी जब्त किया गया है। मासा टाइम अरे लड़ो ना को रे भाई, अरे उसको बढ़ाओ ना जी, क्या है इसे? हाँ जो भी आप देख के बात कर, हमारा आ रहा है जवान आ रहा है। रंगारेड्डी जिले कोत्तूर मंडल के पास तंबाकू को लेकर जा रही लॉरी में आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक लॉरी बरखी वायर से टकरा गई थी। इसके फौरी बाद लॉरी में आग लगनी शुरू हुई। लॉरी ड्राइवर मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना के करीमनगर शहर के 2 टाउन के एसआई चंद्रशेखर ने खुदकुशी कर ली। इस माह की 18 तारीख को उनकी अहलिया देविया ने भी खुदकुशी कर ली थी। इस वाक़े के बाद शदीद जहनी सदमे का शिकार चंद्रशेखर ने इलंता कुंटा मंडल के सीतमपेट में अपने ससुराल के घर में फांसी लगा ली। करीमनगर ज़िले के इलंता कुंटा मंडल के सीतमपेट से ताल्लुक़ रखने वाली देविया 30 साल की शादी 2016 में देसू चंद्रशेखर से हुई थी। उस वक्त ये दोनों करीमनगर के हनुमान नगर में रह रहे थे, जबकि चंद्रशेखर 2 टाउन में एसआई के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि रवां बरस रमज़ान मुबारक में बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.68 मिलियन यानी 17,68,000 रही है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत की जानिब से जारी आदाद व शुमार में बताया गया है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियाजुल जिन्ना के लिए 11 लाख ज़ायरीन ने परमिट लिए, जिनका ताल्लुक़ 155 मुल्कों से था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मक्का मुकर्रमा, जिद्दा और मदीना मुनव्वरा में 30 नेस्क केयर सेंटर से 11 ज़बानों में 1,53,000 खिदमत फराहम की हैं। ज़ायरीन की देखभाल और रहनुमाई मराकिज़ जिनकी तादाद 1,966 है, उससे 1,97,000 अफराद ने रुजू किया। रमज़ान मुबारक के दौरान फील्ड मॉनिटरिंग टीमों ने रिहायशी सेक्टर्स के 21,500 विज़िट किए, जिनका मकसद ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली खिदमात के मेयार को जांचना था। इससे कबल मक्का मुकर्रमा व मुशायर मुक़द्दसा
رائل کمیشن نے بیان میں کہا تھا کہ رمضان المبارک کے ابتدائی 15 دنوں میں مکہ مکرمہ کی حدود میں موجود میقات کی مساجد میں تقریباً 2 ملین عمرہ زائرین کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے۔ وكأن الكعبة المشرفة تباهي بهم في هذا اليوم، تشرق بإشراق وجوههم. ها هم تزفهم الطرق والمسارب إلى بيت الله الحرام، وها هم قد حشدوا قلوبهم قبل أجسادهم في انتظار إقامة صلاة الفجر وأدائهم للصلاة في هذا اليوم المبارك. تلنگانہ اردو کونسل کے سربراہ اور سینئر کانگریس اقلیتی قائد مجتبیٰ عابدی نے ریاست کے تمام مسلم بھائیوں کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عید الفطر تزکیہ نفس، عبادت اور حقوق العباد کا درس دیتی ہے۔ یہ عید انسانیت، ہمدردی اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس عید کے دن امن، اتحاد اور بھائی چارے کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ میر سیف علی عابدی بھی موجود تھے۔ آج عید الفطر کے مبارک موسم موقع پر میں سید مجتبیٰ عابدی تلنگانہ اردو کونسل کے صدر نشین اور خادم اردو کی حیثیت سے، اور آج ہمارے درمیان میں میر سیف علی عابدی صاحب بھی موجود ہیں، ہم سب برادران وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی پرپر مبارکباد دیتے ہیں، اور اس موقع پر اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا عالمی امن، یکجہتی، بھائی چارے کی خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دامن میں رکھے، ہر ایک کو ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے عالم میں امن، یکجہتی، خوشحالی، بھائی چارگی کا ماحول پیدا کر دے میرے مالک۔ ہم اللہ سے دعا گو ہے تو اس طرح سے تمام کو دل مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں میر سیف علی عابدی صاحب بھی ہم جو موجود ہے، ہم تو ہمیشہ قومی یکجہتی کے لیے تعمیری، علمی، سماجی، تہذیبی قومی یکجہتی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے جا رہے ہیں۔ ہم آپ سب کے تعاون کے مشکور ہے۔ دہلی کے اتم نگر میں پولیس کے وسیع تر انتظامات کے درمیان نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ ہولی کے دوران ایک نوجوان کی موت کے بعد بعض زعفرانی تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کو عید نہ منانے دینے کی دھمکیوں کے تناظر میں پولیس کی غیر معمولی چوکسی دیکھی گئی۔ مسلمانوں نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ڈیوٹی پر تعینات پولیس ملازمین پر پھول برسائے گئے۔ پولیس پرشاسن کے اوپر جو ہے اس وقت پولیس پرشاسن جو ہے سب پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے فل سپورٹ کرا۔ یہ دیکھیے جتنا یہاں سے لے کے وہاں تک پولیس پرشاسن ہے، ان سب کو جو ہے پھول برسائے گئے ان لوگوں پہ۔ بہت بہترین کام کرا ہے، بہت بہترین ان لوگوں نے ڈیوٹی دی ہے۔ یہ دیکھ لیجیے پورے اسٹاف کا ویلکم کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر پھول برسائے جا رہے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے فل الرٹ رہا۔ ایک منٹ جی، امن ایک منٹ ہلکے۔ پولیس پرشاسن کے اوپر جو ہے اس وقت پولیس پرشاسن جو ہے سب پہ پھول برسائے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے فل سپورٹ کرا۔ یہ دیکھیے جتنا یہاں سے لے کے وہاں تک پولیس پرشاسن ہے، ان سب کو جو ہے پھول برسائے گئے ان لوگوں پہ۔ بہت بہترین کام کرا ہے، بہت بہترین ان لوگوں نے ڈیوٹی دی ہے۔ بعض شرپرسوں کی طرف سے آج نماز عید کے موقع پر اتم نگر میں مبینہ طور پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ نعرے بازی کرنے والوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ عدالت نے بھی اتم نگر میں پولیس کو موثر انتظامات کی ہدایت دی تھی۔
गरीब को उठा रहे हो अरे उसको क्यों उठा रहे हो भाई माहौल राजस्थान में नमाज ईद के मौके पर भाईचारे के मनाजिर देखे गए। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के कारकुनों ने ईदगाह के पास नमाज ईद अदा करने के लिए आए मुसलमानों पर फूल निछावर किए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की हिमायत में बैनर्स भी देखे गए। जो इस साल हज पे जा रहे हैं तो हाजी हजरात के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया गया है। कल 22 मार्च से 26 मार्च तक मस्जिद अजीजुल्लाह गोविंद सर ये आगे अविनाश सर कैमरा जाएगा। पहले दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, दूसरे दिन से 5। उत्तर प्रदेश को फिरका वाराना तौर पर एक हसास रियासत कहा जाता है। ताहम अमरोहा में हिंदू भाइयों ने नमाज ईद के मौके पर मुसलमानों पर फूल बरसाए और उन्हें फूलों का तोहफा पेश किया। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज के मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। ईद मुबारक हाजी इमरान भाई, ईद मुबारक आपको भी भैया, ईद मुबारक। ईद उल फितर की बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाईजान। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मुसलमानों को ईदगाह पहुंचकर ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वोटों का हक छीनने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा कि हम किसी से डरेंगे नहीं, जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। दूसरी बात यह हो सकता है बहुत सारे आदमी को नाम काट दिया FIR में, जिसको लिए हम कलकत्ता से, दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, कलकत्ता हाईकोर्ट से पूरा दोहराया, लेकिन तब भी हम आशा रखते हैं कि लोगों को इज्जत रखता हो। अगर कोई भी आप लोगों के पास नहीं है तो हम बंगाल का और सिटीजन का साथ, नागरिक का साथ, और कम्युनिटी का साथ, और कास्ट का साथ, और फिट का साथ आप लोगों को परिवार का एक मेंबर होके रह के आपको ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क व रियासत भर में ईद उल फितर रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई। करोड़ों मुसलमान अपने रब के आगे सरबसजुद। दुनिया भर में अमन के लिए की गई दुआएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह मीरालम में नमाज ईद अदा की। मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने मुतल्लिक़ा हल्क़ों में वाक़ ईदगाहों में नमाज ईद अदा की। मुक़ामी अवाम से की मुलाकात। पार्टी से नाराज तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर को मनाने की कोशिशें तेज। जीवन रेड्डी अपने फैसले पर कायम। तेलंगाना के करीमनगर वन टाउन सब इंस्पेक्टर ने कर ली खुदकुशी। 3 दिन कबल बीवी ने की थी खुदकुशी। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात।
मिलावटी अशिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। जियागुड़े में नाखिस और गैर मियारी माहौल में समोसे तैयार करने वाले कारखाने पर धावा किया गया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ ही अख्ताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।